Good afternoon, all of you. As we discussed earlier in previous classes about the various transactions under journal entries, and we started journal entry, which is also known as book of original entry. So, what is the meaning of book of original entry? You already know what is meant by book of original entry. Book of original entry is that book in which we are going to record the transaction at for the first time. That book is known as book of original entry. Please remember this the book of original entry. What is the book of original entry? And we are also started there number of transactions, how to pass in entries regarding that transaction. I told you earlier that you have to understand the transactions before you pass the journal entry. If you are unable to understand the transactions regarding the, if you are able to understand the transaction, then you are able to pass the entries very quickly and very smoothly. There is no tension or none kind of panic regarding the transaction, because every transaction is simplified, and you are going to understand the transaction and able to pass the entries. So till now we have passed number of entries, and we also try to recognize those entries, what kind of entries regarding the purchases, sales, purchase return, sales return, trade discount, cash discount. We already discussed all the number of transactions, and we also discussed about the trade discount and cash discount in case of partial पेमेंट. ठीक है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट और नॉट फॉर द ट्रेड डिस्काउंट, बट कैश डिस्काउंट इज ओनली अलाउड ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट. ठीक है, या तो आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो और यू आर हैव टू रिसीव द पेमेंट. When you receive the payment, you discount, you allow the discount. Sorry. When you receive the payment, you allow the discount, and when you pay or you make payment to someone, then you discount the same. Discount allowed is always loss for the firm. That's why it is always debited in the journal entry. And discount received is an income for the firm or gain for the firm. That's why it is credited in the entry. तो इतना हम सब ट्रांजेक्शन्स के बारे में कर चुके हैं. अब बेसिकली जो हमें स्टार्ट करना था वो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हमने करने थे, और हम कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर भी चुके हैं. तो हम नियर अबाउट कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं वो देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 आपको करने के लिए बोले थे. क्वेश्चन नंबर 14 का ए मैंने स्टॉप किया था. ठीक है, रोका था बीच में. डेट था हमारा 10, एंड उस 10th तारीख की ट्रांजेक्शन तक हमने क्या किया था, वहां पर हमने क्या किया था, रोका हुआ था. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन्स आगे कंटिन्यू करेंगे. एंड इन लास्ट ट्रांजेक्शन वी नो व्हेन the check is to be received. When check is received but it does not deposited till yet, then the check in hand account is to be debited in journal entry. ठीक है. And one more thing, when we are opening check in hand account, we are opening check in hand account only in the case when the transaction is, when the two transaction is regarding for the same date, like check received in one day and on another day we are receiving the we are on another day we are depositing the check into the bank. Then this is the transaction where we have to open the check in hand account. ठीक है, तो उस केस में हमें चेक इन हैंड अकाउंट ओपन करना पड़ता है. आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा प्रीवियस क्लास में. आगे हम क्या करेंगे, अगेन हम उस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 का ए फ्रॉम डी के गोयल, जो हम लोगों ने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था. और एक कॉलम और बना लेंगे, वो क्या होता है, किसका कॉलम होता है, डेट का.
डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट अमाउंट। ऊपर हेडिंग लिख लेंगे जर्नल। एंड क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 14 का ए। तो ट्रांजेक्शन देखेंगे ऑन द डेट ऑफ 12 सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट। ठीक है, कि सोहन ने क्या किया है, डिपॉजिट किया है हमारे बैंक अकाउंट में। तो हम उसे क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। कैसे? ठीक है, सोहन ने क्या किया, हमारे बैंक में डिपॉजिट किया है। सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू फर्स्ट द डेट। डेट में आपका ईयर था, सॉरी ईयर था हमारे यहाँ पर 2017 का। एंड डेट था यहाँ पर अप्रैल 12। ठीक है, सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक, इट मीन सोहन क्या कर रहा है, हमारे बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। तो हमारा बैंक अकाउंट क्या होगा, हमारे बैंक में कैश आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किससे आ रहा है, सोहन से। सोहन इज अ गिवर, दैट्स व्हाई सोहन को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, सोहन को क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन। ठीक है, क्योंकि बैंक में क्या कर रहा है, सोहन हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है। कितना अमाउंट उसने डिपॉजिट किया, द अमाउंट इज 4000। नेक्स्ट इज अप्रैल 16। On April 16, paid income tax by check. Whenever the income tax is made in a transaction, it is an income tax. It means the income of owner, and on that income, the tax is to be charged by the government. ठीक है? That's why if the charge on the income of the owner, then it is a drawing. ठीक है, कि इनकम पे चार्ज हो रहा है किसके, ओनर के। इसलिए क्या है, ये ड्राइंग्स में इंक्लूड होगा। सो ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पर चेक के थ्रू पेमेंट किया है। इट मींस आवर बैंक अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय 5600 रुपीज। सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्यों कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर क्या है कि जो ड्राइंग है, जो इनकम टैक्स है, वो आपके ओनर का है। और इनकम टैक्स ओनर का जब पे किया जाएगा, एनीथिंग विच इज चार्ज फ्रॉम द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, इट इज द ड्राइंग फॉर द फर्म। ठीक है, तो ड्राइंग हो जाएगा, इसलिए ड्राइंग क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट, ऑन अप्रैल 20, what is happening, receive a check from Sohan and send to bank. It means check received on 20 and deposited into bank also on 20, which means the transaction is happening on the similar day. So the entry is receive a check from Sohan. It means our bank account is to be debited because the amount is to be collected by bank, whose bank, firm's bank, and two, from whom the check is received is Sohan. So Sohan is a giver, that's why we are crediting the account of Sohan. The amount is 7800. Next is, and one more thing, when we receive an amount from the Sohan, there is one more thing, discount allowed by the firm. That's why discount allowed is also debited and to Sohan.
So discount allowed of rupees 200 and amount which is settled against the Sohan's account, that is 8,000 rupees. Next, withdrew from bank on 21 April 21, withdrew from bank for office use, that is 2,000 rupees, and for private use, that is 4,000 rupees. So there are two type of withdrawing from the bank. First is for office use, it means for the business purpose, and second is for पर्सनल यूज, इट मीन्स फॉर द पर्पस ऑफ ओनर। ओनर ओन पर्पस के लिए क्या कर रहा है, खुद के पर्पस के लिए विड्रू कर रहा है। दैट्स व्हाई वी हैव टू ओपन टू अकाउंट, दैट इज वी हैव टू डेबिट टू अकाउंट, दैट इज ड्रॉइंग अकाउंट debited because for the personal use, or you can write first on first, that is cash account debited because cash is withdrawn from the from the business for office use, and drawings account to be opened because drawings are made for personal use, to bank account because the amount from the bank is to be reduced. Cash amount is 2,000, which is for office use, and for personal use 4,000 rupees is to be drawing. Next is how much is to be credited, how much total amount is to be reduced from the bank, that is 6,000 rupees of the firm। ठीक है कि फॉर्म के अकाउंट से कितना रिड्यूस हो रहा है। गुड आफ्टरनून अंजलि। हाँ, बिजनेस की क्लासेस से नहीं चली बिकॉज कुछ इश्यू था, एंड मतलब कुछ था, प्रॉब्लम थी। अब क्या एक्सप्लेन करेंगे? I have to explain long story. There is a kind of a story. I am unable to tell you right now, but there is a situation that's why I am unable to take the business study class. But right now, focus on the accountancy class. And question number 14 का ए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, और ट्रांजेक्शन नंबर है अप्रैल का 21 डेट का हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो ऑन अप्रैल 21 यहाँ पर हुआ क्या है कि बिजनेस से विड्रू हुआ है, टू टाइप्स में, टू काइंड्स में विड्रॉ हुआ है, which means for the office use and for the personal use. Whenever for the office use, it means cash is withdrawn from the business for the office use, for the business use. It is not for the personal use. Whenever it is used for personal, whenever it is drawn for the personal use, it is a drawing। ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और कैश अकाउंट को भी डेबिट करेंगे बिकॉज फॉर्म में बिजनेस में क्या हो रहा है, बैंक से पैसा जब निकाल रहे हैं, व्हेन द अमाउंट इज विथड्रू फ्रॉम बैंक, 2,000 in the form of cash came into the business, and 4,000 is to be used for personal use, which means the bank account is to be reduced by 6,000 rupees। Next is on 23rd, on 23rd sent a check of X in full settlement of his account, that is 4,900। अब ये X है कौन? आपने इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखा था, देयर आर टू क्रेडिटर X एंड Y। X जो क्रेडिटर है वो 5,000 का है, ठीक है, 5,000 का क्रेडिटर है, विच मीन्स बिजनेस हैव टू पे 5,000 रुपीज टू हिम। तो बिजनेस ने यहाँ पर फुल सेटलमेंट में पेमेंट कितना किया है? बिजनेस ने यहाँ पर फुल सेटलमेंट में जो पेमेंट किया है, दैट इज फॉर रुपीज 4,900, विच मीन्स बिजनेस रिसीव डिस्काउंट ऑफ रुपीज 100। So let's see what is the entry for this transaction. April 23, because business paid to the X is the receiver, X is to be debited. What is the amount? First of all, sent a check. It means our bank account is to be credited because our amount is to be deducted from bank. That's why bank account is to be credited. Bank and cash का nature जो है लगभग सेम होता है। When cash is come in, bank is to be debited. Cash and check is to be come in, bank and cash both are to be debited. When cash is going out from the business, ठीक है, और by the way of check, बैंक एंड कैश बोथ आर क्रेडिटेड। जब भी बिजनेस से कैश जाता है या बिजनेस से बैंक से कैश जाता है, दोनों का नेचर सेम रहता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स को पे किया जा रहा है एंड डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। एक्स जो है उससे 5,000 रुपीज लेना था, ठीक है।
बैंक से गया है कितना, 4900 रुपीज गया है, बिकॉज पेमेंट जो है चेक से वो 4900 का किया है, एंड जो डिस्काउंट रिसीव किया है वो 400 का किया है। इट मीन्स द फुल सेटलमेंट हैज बीन डन फॉर 4900 of rupees 5000 with X. Who is X? X is the creator of the business. अब क्या है आगे देख लेते हैं। इतना अगर आप लोगों ने कर लिया होगा तो आगे यहाँ से दोबारा से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ कर लेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ स्पेस ऑन द बोर्ड। So what we do, the next transaction is on 23rd. Sorry, 20 not 23rd. On 27th, check of Sohan returned by the bank as dishonored. मतलब जो चेक हमने सोहन से लेकर बैंक में जमा किया था वो चेक जो है बैंक ने डिसऑनर कर दिया। What is meant by dishonor? Dishonor is happening when the check is not to be qualified or not to be credited in our account. ठीक है, जैसे कि हमने चेक लिया, we receive a check from a person and deposited into bank, but the check, the common word is used for this is check bounce. When check bounce हो जाता है, when check bounce, which means the provider of the provider of the check doesn't have enough money in, which means the provider of the check doesn't have enough money in his account, which is to be debited from his account to our account. ठीक है, send transfer from his account to our account. That's why the check is to be dishonored. सिंपल सी भाषा में ये है कि आपने चेक दिया, बट जिसने आपको चेक दिया है आपने उस चेक को बैंक में जमा किया, लेकिन बैंक में वो क्या हो गया, चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि चेक की एक लिमिट होती है। चेक का लिमिट का मतलब चेक का एक ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में अगर आप डिपॉजिट नहीं करेंगे तो वो चेक कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली। एंड और एक और चीज होता है कि चेक आपने क्या किया है, सॉरी वो चेक नहीं होता, वो ड्राफ्ट होता है। चेक के केस में क्या होता है कि चेक जो होता है कि अगर सपोज दैट आपको मिला है तो आप चेक को डिपॉजिट करते हैं तो वो सामने वाले के अकाउंट से हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। बट इफ ही और शी डजंट हैव enough amount of money in his own bank account, then the amount is unable to transfer from his or her account to our account. That's why the check is to be dishonored by the bank. So the same condition is here. Check of Sohan returned by the bank as dishonored. बैंक ने क्या किया, चेक रिटर्न कर दिया है किसका, सोहन का, जो हमने रिसीव किया था ऊपर। अभी हम देख लेते हैं हमने चेक कितने का रिसीव किया था। हमने चेक रिसीव किया था सोहन से। सोहन ने हमारे डिपॉजिट किया था कितना, 4000 रुपीज का चेक हमने क्या किया था, रिसीव किया था किससे, सोहन से, जो कि हमारे बैंक में डिपॉजिट हुआ था। बट वो डिपॉजिट होने के बाद बैंक ने क्या कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया और डिसऑनर कर दिया। तो डिसऑनर करने की जब भी एंट्री होती है तो आप उसको रिवर्स कर लेंगे, जो भी आपने एंट्री उसकी की होगी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट ऑफ चेक इनटू द बैंक अकाउंट यू हैव मेड अ एंट्री, यू जस्ट हैव टू रिवर्स द एंट्री, दैट इज द एंट्री ऑफ डिसऑनर। व्हिच मींस हमने क्या किया था, हमने किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन बिकॉज सोहन पेड अस थ्रू चेक और सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट। ठीक है, सोहन ने हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट, एक मिनट में देख लें दीजिए, वेट मिनट, यहाँ पर जो था रिसीव चेक, सॉरी 7800 का हमने चेक रिसीव किया था किससे, सोहन से, एंड डिस्काउंट अलाउ किया था 200 का। तो वो 7800 का जो चेक है वो क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा उसका रिवर्स कर देंगे, यानी कि पूरा का पूरा 8000 का हम उसको रिवर्स कर देंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा यहाँ पर। एंड सोहन विल एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा उसी एंट्री को रिवर्स करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे देख लेंगे। अप्रैल 27 यहाँ पर हो क्या रहा है, इन अप्रैल 27 फर्स्ट ऑफ ऑल सोहन डेबिटेड, सोहन को क्रेडिट किया था बिकॉज सोहन गिवर था। अभी हम क्या करेंगे, सोहन का चेक सोहन को रिटर्न कर देंगे टू बैंक अकाउंट बिकॉज हम उसका चेक रिटर्न कर रहे हैं, एंड डिस्काउंट अलाउड भी रिवर्स कर देंगे। इसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑफ एंट्री। रिवर्स एंट्री कब होती है, रिवर्स एंट्री तब होती है जब कोई हमने चेक, मतलब कोई ट्रांजेक्शन हमने किया, कोई एंट्री हमने पास की एंड जस्ट उसका अपोजिट हो गया। तो वही चीज यहाँ पर अपोजिट क्या हुआ है कि सोहन से 8000 रुपीज हमें लेना था और उसने हमें चेक दिया था 7800 का, जो कि डिसऑनर हो गया, और 200 का जो हमने उसको डिस्काउंट दिया था वो भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन 28
दिनेश वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अभी ये जो है नया ट्रांजेक्शन है, इसके बारे में हम समझेंगे। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन एनीवन बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब कोई बिजनेस से पैसा ले रहा है और वो क्या हो जा रहा है? इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, उसे हम बोलते हैं दिवालिया हो जाना। दिवालिया मतलब ही हैज नो मनी टू पे अस, उसके पास अब कोई पैसा नहीं है कि वो हमें पे कर सके। हमने सपोज दैट अपने फ्रेंड को पैसा दिया, अब उसके पास पैसा ही नहीं है कि वो हमें पे कर सके। दैट बिकम बैड डेप्ट टू दी फॉर्म। ठीक है, वो फॉर्म के लिए क्या हो गया? बैड डेप्ट हो गया। बैड मतलब बुरा, डेप्ट मतलब उधार। जो हमने उधार दिया था वो क्या हो गया? डेटर हमारा बैड हो गया। उसी को हमें क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं बैड डेप्ट। अब इस ट्रांजेक्शन में हम फर्स्ट टाइम बैड डेप्ट को समझेंगे और बैड डेप्ट की एंट्री करेंगे। आई होप बैड डेप्ट समझ में आया होगा। Whenever selling of goods or cash to a person on credit, that create a debtor of the firm. When debtor of the firm, I hope this term is to be clear. What is meant by debtor? So whenever sold goods to the person on credit, it become a debtor to the firm. And whenever he is not paying the amount, it becomes a bad debt for the firm. और नॉट पेइंग का चांसेस जो है वो, मतलब केसेस जो है, नंबर ऑफ फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। लाइक ही बिकम इंसॉल्वेंट, इंसेनिटी, इनसेन हो गया, पागल हो गया, ही हैज नो कंट्रोल ऑन हिज ओन माइंड। तो उस केस में क्या होता है? बैड डेप्ट होता है। बैड डेप्ट क्या है? बिजनेस के लिए नुकसान है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, और यू कैन से दैट फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड इट इज अ लॉस फॉर द फॉर्म। तो लॉस को क्या करते हैं? एज वी ऑलरेडी नो, एज फॉर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, लॉस इज टू बी डेबिटेड एंड gain is to be credited. So bad debt is a loss for the firm. So एंट्री यहाँ पर क्या होगी? एंट्री हम देख लेते हैं सबसे पहले, एंड कैलकुलेशन हम बाद में देख लेंगे। कि अप्रैल 28 को क्या हुआ? बैड डेप्ट क्रिएट हो गया, बैड डेप्ट। ठीक है, पहले हम ट्रांजेक्शन को समझ लेते हैं। ट्रांजेक्शन है दिनेश वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट बाय चेक। ठीक है, तो उससे हमें 60 पैसा 1 रुपए पे मिल रहा है। ठीक है, 60 पैसा 1 रुपए पे मिल रहा है। अभी हम देख लेते हैं कि दिनेश जो है वो डेटर कितने का है। चलिए अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। पहले इसको रब कर लेते हैं, फर्स्ट रब इट। सो व्हाट इज दिस? लेट्स सी। 14,000 रुपीज जो है वो दिनेश से लेना था। ये हम ऊपर से कोई मतलब नहीं है ना, इस फॉर्मेट से मतलब है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक नोट दिखा रहा हूँ, वर्किंग नोट किस तरीके से करना है। 14,000 रुपीज दिनेश से लेना था एंड दिनेश बिकम इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया। उसके पास रुपया ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से देगा? बट वो फिर भी जैसे तैसे करके 60 रुपए 1 रुपए पे देता है। तो वो एक आप सिंपल सा फॉर्मूला, 60 पैसे 1 रुपए पे देता है। ठीक है, तो अगर 60 पैसे 1 रुपए पे देगा तो 14,000 रुपए में से कितने पैसे, कितने रुपए देगा? सिंपली क्या करिए, 60 रुपीज जब भी बोले, एक पैसा कितने का, 1 रुपया कितने का होता है? 100 रुपए का, 100 पैसे का होता है 1 रुपया, होता है ना। तो 100% मान लेते हैं उसको। अब 100% में से 60% दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 60%, 60/100 अगर कर लें तो हमारे पास आ जाएगा कि आखिर वो पेमेंट कितना कर रहा है। तो 60% कैलकुलेट करने पे पता चलता है कि वो 8400 रुपीज हमें पे कर दे रहा है। और बाकी बचे हुए कितना हो जाएगा आपका? 14 में से 8 माइनस कर देंगे। 14,000 में से 14,000 में से 8,000 माइनस करेंगे, 6,000 आएगा। और 6,000 में से 400 माइनस करेंगे तो 5,600 आएगा। इट मीन्स कि वो 5,600 जो है वो हमारा क्या हो गया? बैड डेप्ट हो गया। आई होप समझ में आया होगा कि 14,000 का टोटल रुपीस था, टोटल जिस जो हमें लेना था, किससे? दिनेश से। गुड आफ्टरनून रोहित सिंह, शुक्रिया आपका आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, एटलीस्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं। और भी लोग अगर अटेंड कर रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, एटलीस्ट आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। और अच्छा लगता है जब कोई क्लास अटेंड करता है तो पढ़ाने में मजा भी आता है। जब नहीं अटेंड करता है तो हम लोग भी बोर हो जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे 0 0 दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू वेयर वी आर।
कि 14,000 का हमारा क्या है, दिनेश एक डेटर है जिससे हमें उधार लेना, सॉरी वापस पैसा लेना था, बट ही इज जस्ट पेइंग 60 पैसा इन रुपी, यानी कि 60% ही वो पेमेंट कर रहा है। तो 60% पेमेंट कर रहा है, इट मीन 60 रुपए दे, सॉरी 60 पैसा दे रहा है 100 पैसे में, 100 पैसे में 60 पैसा दे रहा है, तो हम 60/100 करके कैलकुलेट कर लेंगे कि आखिर उसने दिया कितना। तो ही गेव अस ओनली 8400 रुपीज, वी डिडक्ट फ्रॉम टोटल 14,000 रुपीज एंड वी गेट 5600 एज अ बैड डेट, विच मीन्स कि 5600 रुपीज हमें उससे नहीं मिल पा रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 5600 रुपीज हमें उससे नहीं मिल पा रहा है, जो पैसा हमें फिलहाल नहीं मिल रहा है, दैट बिकम बैड डेट फॉर द बिजनेस। तो हम ये अमाउंट दिमाग में बिठा लीजिए, वर्किंग नोट कर लीजिएगा। हम अब इसकी एंट्री पास करते हैं, ठीक है। और जो वो अमाउंट दे रहा है वो भी चेक के थ्रू दे रहा है, ठीक। तो एंट्री पास कर लेते हैं। सबसे पहले उसने जितना दे दिया है, the amount which is given by Dinesh to the firm, that's why bank account debited, because the amount is given by the firm to given by Dinesh to the firm, and the amount which is not given by the Dinesh to firm, that become bad debt. So we have to open bad debt account here, because this is loss. That's why we are debiting the bad debt to Dinesh. दिनेश इज द गिवर। सो दिनेश ने पे कितना किया? दिनेश पेड 8400 आउट ऑफ 14,000। ही डिड नॉट पे 5600 आउट ऑफ 14,000। द टोटल अमाउंट विच इज सेटल्ड, विच इज नॉट सेटल्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, दैट इज 14,000 रुपीज। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक बैड डेप्ट का ट्रांजेक्शन भी सबको समझ में आ गया होगा, and how to make a calculation of bad debt amount if the transaction, if this type of transaction is given to you. Next, on 28, sorry, on 30, bank allowed interest, and same on same 30, paid for rent by check, on same 30, paid for traveling expense by check. There is two expenses and one income, ठीक है। तो हम उसको कर लेंगे कैसे? हम यहां पर लिख लेंगे सबसे पहले अप्रैल 30। अप्रैल 30 में हम क्या करेंगे? बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, इट मीन्स हमारे बैंक में पैसा आ रहा है। बैंक जब अलाउ करता है इसका मतलब वो हमें दे रहा है। तो बैंक अलाउड इंटरेस्ट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में आया, एंड इंटरेस्ट इज द इनकम, दैट्स व्हाई इंटरेस्ट इज टू बी क्रेडिटेड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बिकॉज इंटरेस्ट इज टू बी क्रेडिटेड एंड इंटरेस्ट इज एन गेन फॉर द फर्म। कितने का दिया? 350 का गिवन by the bank. Bank allowed us interest of rupees 350. On same April 30, there are two expenses paid by check. First is rent. Expense को हम क्या करते हैं? Debit करते हैं. That's why rent is to be debited. And traveling expense is also debited. Travel expense account debited. And both of the amount is paid by check. That's why to बैंक अकाउंट। कैश से होता तो कैश लिख देते। अमाउंट इज 1500 एंड 500, 1500 एंड 500, टोटल अमाउंट इज 2000 रुपीज। एट द एंड आप लोग ग्रैंड टोटल कर लेंगे और देख लेंगे कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। दोबारा से हम एक बार देख लेंगे क्या आखिर यहाँ पर मतलब है इनका, इन ट्रांजेक्शन्स का। एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और तब तक हम स्टार्ट करते हैं। तो बैड डेप्ट का आई होप सबको समझ में आया होगा। बैड डेप्ट क्या होता है? बैड डेप्ट इज अ सिचुएशन
It is created or it is happened when a person who took the money from the business and unable to return the money on particular time or on a point of time. Abhishek Singh, थैंक यू, थैंक यू अभिषेक क्लास अटेंड करने के लिए। एक बार दोबारा से एक बार स्टार्टिंग से देख लेना। आई होप, मुझे लग रहा है कि तुमने स्टार्टिंग से नहीं देखा होगा, तो कोई बात नहीं, देख लेना। और भी अगर कोई देख रहा हो तो वो भी रिप्लाई कर दे, एटलीस्ट पता तो चले कि हाँ इन लोगों ने क्लास अटेंड की है। कोई भी है तो आप यस सर, ओके सर, गुड आफ्टरनून सर, कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आज न्यू ट्रांजेक्शन देखे हैं। दो टाइप के हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखे, दैट इज फर्स्ट फॉर द चेक इन हैंड, व्हेन द चेक इन हैंड इज टू बी ओपन। सेकंड इज रिगार्डिंग द डिसऑनर, व्हाट इज डिसऑनर, एंड थर्ड इज रिगार्डिंग द बैड डेब्ट, व्हाट इज बैड डेब्ट। लेट्स सी एंड लेट्स टॉक अबाउट अगेन when the check in hand account is to be open. Check in hand account is to be open when you check receive, when you receive the check on one day, but the actual deposit of that check is made on another day and it is mentioned in your transactions on the other another day, then we have to open the check in hand account। ठीक है, कि हम चेक इन हैंड अकाउंट तब ओपन करते हैं जब हमारे पास ट्रांजैक्शन में एक बार दिया हो कि हमने चेक रिसीव किया है किसी एक पर्टिकुलर डेट पे, और उसके नेक्स्ट किसी डेट पर या नेक्स्ट डेट पर ही, क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट डेट, यानी कि मान लीजिए 9 तारीख को रिसीव किया, 12 तारीख को क्या कर रहे हैं चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उस केस में हमें 9th को हमें क्या करना पड़ता है, चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। बिकॉज चेक इन हैंड हमारे पास रहता है। चेक इन हैंड का मतलब क्या है, चेक इन हैंड, चेक जो है वो हमारे हाथों में है, अभी तक हमने उसको डिपॉजिट नहीं किया है। बट इन केस नथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग द डिपॉजिट इन नियर फर्दर ट्रांजेक्शन, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम ये मान लेते हैं कि वो जो चेक रिसीव किया गया है उस चेक को क्या कर दे रहे हैं, सेम डे पे अकाउंट में डिपॉजिट भी कर दे रहे हैं। ठीक है, उसका मतलब यही होता है, अगर नथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग द चेक डिपॉजिटेड इनटू दी बैंक, ठीक है, कि आगे किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर ऐसा मेंशन नहीं है कि चेक कब डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि ये मान लेंगे, ये एज्यूम कर लेंगे कि चेक जो है सेम डेट पर रिसीव हुआ है और सेम डेट पर ही डिपॉजिट कर दिया गया है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब क्या होता है, मैंने दोबारा बताया। डिसऑनर किस केस में होता है, डिसऑनर इज हैपनिंग ओनली इन अ पर्टिकुलर केस, दैट इज व्हेन द चेक इज बाउंस्ड फ्रॉम द बैंक। वी रिसीव अ चेक एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, बट द चेक इज बाउंस्ड or check is not cleared by the bank or the amount is not credited by the bank or bank is unable to credit that amount in our bank account due to some reason, that is known as dishonored। उसका मतलब क्या होता है, डिसऑनर होता है कि जो चेक का डेट था वो क्या हुआ, उस पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट पर डिसऑनर हो गया है। ठीक है, तो डिसऑनर के केस में हमेशा याद रखना जो एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, कि व्हेन यू पास अ एंट्री ड्यूरिंग द रिसीव अ चेक, रिसीविंग द चेक और डिस्काउंट अलाउड एनी एंट्री यू पास regarding the check you received or regarding the amount you received, but the check is dishonored in near future, you just have to reverse the entry। आपको एंट्री को रिवर्स कर देना है, बिकॉज वो चेक को हम क्या करेंगे, जो चेक हमारे पास बाउंस हो गया हम दोबारा पहुंच जाएंगे उसके पास, ये लो भैया अपना चेक, आपका चेक तो बाउंस हो गया, हमें पैसा मिला ही नहीं, दूसरा चेक ड्रॉ करके दो दोबारा से। ठीक है, वो किसी भी रीजन से हो सकता है। मैंने बताया कि वहां पर क्या है कि साइन मिसमैच कर गया या अमाउंट में गलती कर दिया, उसने काट पीट कर दिया उसमें, तो वो चेक क्या होता है, बैंक से डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर का मतलब, ऑनर का मतलब क्या होता है, व्हेन चेक इज मेट ऑन मैच्योरिटी डेट, दैट इज ऑनर ऑफ बिल। बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया। ऑनर का मतलब रिस्पेक्ट में वो बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया। बट जब वो बिल नहीं मिला तो वो डिसऑनर हो गया। समझ में आया। बैड डेब्ट के केस में हमने क्या बात किया कि वेन एवर वी सोल्ड गुड्स to a person on credit or we gave a good to someone on credit but he is unable to pay the amount on a maturity date, तो उस डेट पे वो जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, बैड डेप्ट हो जाएगा। बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है कि बुरा हो गया, वो डेप्ट हमारा खराब हो गया, मतलब इस अकाउंटिंग पीरियड में तो वो पैसा अब हमें नहीं मिलेगा। अब 60 पैसा इन रुपी, 40 पैसा इन रुपी, 50 पैसा इन रुपी कुछ भी बोल दे, तो उस केस में क्या करना, 50/100, 40/100, 60/100 आप करके कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ मच अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड, हाउ मच अमाउंट इज नॉट टू बी रिसीव्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम अ डेटर। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। जिसको भी किसी भी टाइप का अगर डाउट लगता है इसमें
तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। मैंने आपको सफिशिएंट अमाउंट सफिशिएंट एंट्रीज करके दे भी दिए हैं। अगर किसी तरीके का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन नेक्स्ट क्लास व्हाट इज योर होमवर्क? रिगार्डिंग द होमवर्क यू मस्ट डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 14 का बी आप लोग एक बार ट्राई करेंगे। एंड जो ट्रांजेक्शन में डिफिकल्ट लगे, जो ट्रांजेक्शन आप ना आए, आप पुट करिए। ठीक है, हम अगर आप लोग पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं पूछेंगे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाएंगे। सो थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।